Hello friends, welcome to Study Krida. Friend, this is Ashish Gehlot and I am taking a human resource management class. Our topic of today is industrial conflict, or we can say industrial dispute. Friend, earlier we have discussed about the employee separation and industrial relation part 1. There we have discussed about the grievance, and you can say this is a part 2 video. Okay. So these videos which I am giving you about the human resource management are equally helpful for those people who is preparing for any competitive exam, whether UGC NET or any banking specialist exam, or to those who are pursuing their master's degree. Those who are pursuing their post graduation can get the benefit from these videos. All you have to do to go through the human resource management playlist of Study Krida channel and go through the all the videos. I have put my all human resource videos there, and if you have if any problem arises, we have provide a platform there. You can send any problem, query and suggestion. The platform is this email id. Please note it down. This email id is studycareer@gmail.com. Here you can send your any problem, query and suggestion, or you can like our Facebook page. Facebook का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टाइप कर दूंगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी इस वीडियो से रिलेटेड, कोई अराइज होती है तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट स्टार्ट अबाउट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सो फ्रेंड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, what is a dispute? Dispute is like when some disagreement arises. अभी disagreement arises between two or more than two person, ठीक है। when any disagreement arises between two or more than two person, this lead to the disagreement, or we can say this lead to the birth of the disagreement or dispute. So dispute arise ऐसे होता है. Similarly in the industries, when there is a disagreement between worker and employer, employer and a worker, then the dispute arises. So this concept is taken in this definition, which is written in the Industrial Dispute Act 1947 section 2 clause K, ठीक है। Industrial dispute means any dispute or difference between the employer and employee, or between employer and between workman and workman, which is connected with the employment or non-employment or terms of employment, or with the condition of labor of any person. और हेयर अब हमें जो नोट करने वाली बात है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट डिस्प्यूट विच अराइजेज इन द इंडस्ट्री शुड बी रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. So these are the things which we have to consider, ठीक है। So this is a valid definition given by the act, so it becomes important and you have to go through this definition. Now let's come to the classification of the industrial disputes, and these are the three type of classification: interest or economic dispute, grievance dispute, or right dispute, dispute over unfair labor practices. So we are not going into the detail of these disputes. Now you have to do something. अब आपको कुछ करना है, हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो मैं ये टॉपिक आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको आप गूगल करके पढ़िए, या अगर और इसकी एक्सप्लेनेशन अगर बेटर होगा, क्योंकि एक अगर एक्टिव हम पढ़ाई करें, आप एक जो पढ़ाई होनी चाहिए वो एक एक्टिव होनी चाहिए, जिसमें कि मेरा इन्वॉल्वमेंट एंड आपका इन्वॉल्वमेंट, दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो. तो आप क्या करेंगे, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कमेंट पे, फेसबुक पे, मैसेज पे, ईमेल पे, आप कहीं भी किसी भी मीडियम के थ्रू मेरे को भेज सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि यस, आप इंटरेस्टेड हैं स्टडी करने में, ओके। सो आप इनको देख लेना. Now the next is causes of industrial conflict. Then these are the some causes of industrial conflict: economic advantage, obviously, job security, wages, share in profit, and management attitude toward labor. अब हेयर इन कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि क्या कारण है जिससे कि डिस्प्यूट अराइज होता है एक इंडस्ट्रीज़ में। तो ऑब्वियसली वेजेस तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमेशा से ही, कि पैसों को लेकर ज़रूरी होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर देना नहीं चाहता और एम्प्लॉय जो होता है या वर्कर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहता है, एटलीस्ट उतना तो गेन करना चाहता है जितना वो अपना हार्डवर्क डालता है। जबकि जो एक टेंडेंसी होती है जो एम्प्लॉयर की होती है, वो होती है इग्नोर करने की वर्कर्स के लेबर को, ठीक है। तो वो उनके लेबर को इग्नोर करते हैं, तो इससे एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है. प्लस शेयर इन प्रॉफिट,
Now share, what is in share in profit, that workers always want that they are contributing a lot of in the industries, so they want if so they want their share. शेयर किस लिए, कि जो वो मेहनत कर रहे हैं इंडस्ट्री में, अपना जो खून पसीना बहा रहे हैं, उसका उन्हें जो प्रॉफिट, अगर इफ इंडस्ट्री इज गेनिंग सम प्रॉफिट, देन दे वांट देयर शेयर इन द फॉर्म ऑफ द बोनस. इफ इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, देन दे वांट देयर बोनस. बट वही एम्प्लॉयर टेंडेंसी होती है, दे डू नॉट वांट टू गिव द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द वर्कर्स एडिक्वेटली एंड टाइमली. ठीक है. नाउ द जॉब सिक्योरिटी. It focuses on the fact that workmen want to protect the condition of their work in the long run rather than the short-term wages gain. And in the economic advantage, it maintains both the labor union and the employer attempt to maximize their economic gain. So these are the causes of industrial dispute. And fifth, management attitude to labor. It is the obvious. Obvious कि management का attitude अच्छा नहीं होता है. ठीक है. So these are the things. एंड आपको ये क्या करना है, आपको एक पैसिव लिसनर नहीं, एक्टिव लिसनर, एक्टिव स्टूडेंट बनना है. और इन सब के बारे में अगर आप इसको जितना डिटेल्स मेरे को भेज सकते हैं वो भेजिए. इससे आपकी स्टडी इम्प्रूव होगी और मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगा. ठीक है, आपके साथ इसमें फिर मैं भी अपने सजेशन कुछ होंगे तो मैं आपको दूंगा. आप जो बताएंगे इससे रिलेटेड मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन अराइज करूँगा. ओके, तो इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी और ये टॉपिक स्ट्रांग होगा. एंड दिस टॉपिक इज़ very important for if you want to score maximum in the paper 3 of UGC NET exam. Now the question arises, what happen when the dispute arises. क्या होता है जब एक इंडस्ट्री में एक डिस्प्यूट अराइज होता है. ठीक है, तो डिस्प्यूट अराइज जब होता है तो वर्कर अपना जो प्रोटेस्ट होता है वो शो करते हैं थ्रू स्ट्राइक, घेराव, पिकेटिंग एटसेट्रा. In these forms worker shows their protest. एंड हाउ द मैनेजमेंट शो देयर प्रोटेस्ट. ठीक है, मैनेजमेंट कैसे शो करता है, मैनेजमेंट शो देयर प्रोटेस्ट थ्रू लॉकआउट. सो फर्स्ट वी हैव, सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स वी कैन से. हम इनमें से दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स निकाल सकते हैं. द फर्स्ट इज द स्ट्राइक एंड द सेकेंड इज द लॉकआउट. वी मस्ट नो. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए. तो स्ट्राइक की डेफिनेशन आपको जो दी गई है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 एंड द क्लॉज क्यू. ओके, सो ये जो मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है, ये क्यों लिख रखा है, ये ऑब्वियसली इसलिए लिखा है ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि डेफिनेशन जो स्ट्राइक है या फिर डिस्प्यूट है, ये किस एक्ट के अंडर आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे अराइज हो जाते हैं. ठीक है, तो स्ट्राइक की डेफिनेशन आपको यहाँ लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल डेफिनेशन है. स्ट्राइक आपको सबको पता है कि किसी भी तरह से अपना विरोध जताते हैं किसी चीज़ को लेकर. ठीक है, वर्क से रिलेटेड. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना अगर आपको नहीं पढ़ने आ रही. एक बार मैं रीड कर देता हूँ. अ सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और कंसंट्रेटेड refusal under a common understanding of a number of person who are or have been so employed to work to accept employment. आपको सिर्फ रटना नहीं है, बस एक बार देख लेना, उतना इससे आएगा नहीं. ठीक है, ये कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स हैं. ये मैंने सारे लिख दी, इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ पता होनी चाहिए. जैसे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि पिकेटिंग हो गई, घेराव हो गया, हंगर स्ट्राइक, ये सारे स्ट्राइक्स हैं. तो इनको जल्दी जल्दी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है, स्टे वे स्ट्राइक. स्टे वे स्ट्राइक, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्राइक वर्कर्स सिंपली डू नॉट कम टू द वर्क प्लेस ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर. इंस्टेड दे ऑर्गेनाइज रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन विद अ व्यू टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर. वो अपने ना वर्किंग आवर्स में नहीं आते फैक्ट्री के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर, वो होते वहीं हैं लेकिन बाहर से अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे होते हैं. ठीक है, उनका अटेंशन लेने के लिए. सिट डाउन और स्टे इन स्ट्राइक. इन सिट डाउन और स्टे इन स्ट्राइक में क्या होता है, इट इज़ सेड टू हैव अकर्ड व्हेन अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय और अदर इंटरेस्टेड इन अटेनिंग अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन अ पर्टिकुलर बिजनेस टेक पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दैट बिजनेस, establish themselves in the plan, stop its production, refusal access to owner or to other desiring to work. मतलब इसमें ये बेसिकली ये है कि बैठ जाते हैं, काम वाम नहीं करते हैं, दूसरों को भी कहते हैं कि बैठ जाओ, हम और काम मत करो. ठीक है, वर्क को रोक दिया जाता है इसमें. ठीक है, and now the next is tool down strike and pen down strike.
So this is resorted to by the factory worker and an office employee. In such a strike, the striker lay down their tools or a pen and refrain from doing work through, though they remain on the in the job or in the workplace. Means वो जॉब पे या अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं पर अपना जो काम है वो नहीं करते हैं, ठीक है। घूम फिर के सब में यही बात आ रही है। टोकन और प्रोटेस्ट स्ट्राइक, टोकन और प्रोटेस्ट स्ट्राइक मीन्स अपना वही विरोध दिखाना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइटनिंग और कैट कॉल स्ट्राइक्स, इसमें क्या है, एक लीगल नोटिस दे के सडन स्ट्राइक हो जाती है। एक लीगल नोटिस दिया होता है कि हम स्ट्राइक करेंगे और कभी भी स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है। तो ये लाइटनिंग है, कैट कॉल स्ट्राइक हो गई। गो स्लो मतलब कि काम को स्लो कर देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे काम करते हैं। पिकेटिंग एंड बॉयकॉट, पिकेटिंग बॉयकॉटिंग मतलब कि वो प्ले कार्ड लेके बैनर लेके जो स्ट्राइक की जाती है। पिकेटिंग और बॉयकॉट मीन्स बैनर प्ले कार्ड लेके स्ट्राइक की जाती है, उसको बोलते हैं पिकेटिंग एंड बॉयकॉट। एंड द घेराव मीन्स फैक्ट्री को कवर कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। वर्कर सराउंड द फैक्ट्रीज एंड स्टॉप द वर्क एंड प्रिवेंट द एम्प्लॉयर फ्रॉम एंटरिंग और एग्जिटिंग द वर्क प्लेस। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्राइक इज नोन एज द घेराव हंगर स्ट्राइक विच द महात्मा गांधी यूज टू डू, ठीक है। भूख हड़ताल, this is everybody knows about the hunger strike, so we are not wasting anyone's time. Now sympathetic strike means कि वर्कर्स का खुद का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन दूसरों के कॉज के लिए वो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, ठीक है। दैट इज सिंपैथेटिक स्ट्राइक। So these are some kind of strike, you must google them and I will provide the PPTs of these later, ठीक है। अब सम क्वेश्चन है थियोरेटिकल कि कब स्ट्राइक जस्टिफाई होगी, व्हेन आर द स्ट्राइक जस्टिफाइज एंड द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्राइक, कैसे स्ट्राइक्स को रोका जा सकता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सोचना और अपने आंसर्स लिखने की कोशिश करना, ठीक है। ज़्यादा सोचना ही है। स्ट्राइक कब जस्टिफाई होगी, जब आपका कॉल सही होगा, ठीक है, एक सही वे में की जाएगी, प्रोडक्शन वर्क पे ज़्यादा नुकसान नहीं पड़े। दीज कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको बता देंगे स्ट्राइक जस्टिफाइड। जस्ट ये बेसिकली एक डिबेट का टॉपिक टाइप का है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लॉकआउट्स। Lockout refer to the action of the employer in temporarily closing down or shutting down to the undertaking or refusing to provide its employee with the work with the intention of forcing them either to accept the demands made by them or to withdraw the demands made by them on him। ये जनरली एम्प्लॉयर करता है कि वर्क को रोक देता है और अपनी कुछ ये क्यों रोकता है, ये इसलिए रोकता है कि उसको अपनी कुछ डिमांड मनवानी होती है वर्कर से, या वर्कर ने कुछ डिमांड की होती है तो उसको विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डिफाइन है, तो इसकी डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। नाउ देयर इज़ ए टॉपिक इंडस्ट्रियल पीस। तो इंडस्ट्रियल ग्रीवियंस हमने पढ़ लिया, डिस्प्यूट हमने पढ़ लिया, तो इंडस्ट्रियल पीस आप लिख सकते हैं। थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इंडस्ट्रियल पीस क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल में कोई ऐसी डिस्प्यूट या ग्रीवियंस नहीं आना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए जिससे कि वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव अच्छे से, वर्कर्स की नीड पर ध्यान दिया जाए, उनकी सेफ्टी, हेल्थ और उनकी जो पेमेंट है, कंपनसेशन है, उसको वो एडुकेट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द वर्क होनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स दैट कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल पीस। अगर इंडस्ट्री में वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों के बेनिफिट्स को देख के काम किया जा रहा है तो एक इंडस्ट्री में एक पीस रहेगा, हारमोनी रहेगी, ठीक है। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल पीस। Now, if any dispute arises in industries, what are the machinery to handle this industrial dispute? Then there are two machinery: preventive machinery and the settlement machinery. Preventive machinery, also known as the voluntary or non-statutory, and the next is settlement machinery. In preventive machinery, there are basically 5 types of machinery. The first is worker participation in management, second code of discipline, third collective bargaining, fourth standing order, fifth grievance procedure, and the last is tripartite bodies. And in the settlement machinery, there are the conciliation. Conciliation consists of the conciliation offer, conciliation board, code of inquiry, voluntary arbitration, adjudication, labor code, industrial tribunals, and the national tribunals. So these are the settlement machineries. These are the machinery for handling the industrial dispute. Now the first is the worker participation in the management. So वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट आपको क्या बताता है कि अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, मैंने आपको बताया था कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट्स में, ठीक है, इसी बात को वर्कर पार्टिसिपेशन। तो वर्कर पार्टिसिपेशन अगर इंडस्ट्री वर्कर का पार्टिसिपेशन कर दिया जाएगा तो डिस्प्यूट हैंडल हो जाएगा, ठीक है। वो अपने आप को अटैच समझेंगे।
इट इज़ अ मेथड वेयर बाय द वर्कर अलाउड टू कंसल्टेड एंड हैव टू से इन द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिट। तो वर्कर पार्टिसिपेशन करने के तरीके क्या होते हैं? तो वर्कर को पार्टिसिपेट करते हैं वर्क कमेटी बना के, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बना के, को पार्टनरशिप के जरिए, और कुछ सजेशन स्कीम होती है उनके थ्रू। अब वर्कर्स पार्टिसिपेशन में पहला आएगा वर्क कमेटी बना के। वर्क्स कमेटी के प्रोविज़न डिफाइंड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और बोला गया है वर्क्स कमेटी कहाँ सेटअप होगी? इन ऑल दोज इंडस्ट्रियल यूनिट जहाँ वर्कर जो एम्प्लॉय होंगे वो होंगे 100 या 100 से ज़्यादा। ठीक है। वर्क्स कमेटी बेसिकली एक कंसल्टेटिव बॉडी है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ वर्कर और एम्प्लॉयर्स होंगे, और ये लोग क्या करेंगे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया अगर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में तो उसको सॉल्व करेंगे। और ये इशूज़ कौन कौन से डील करते हैं? रिलेटेड टू द वेजेस, बोनस, बेनिफिट, आवर्स ऑफ वर्क एट्सेट्रा। इंडिया में जो है टिस्को जमशेदपुर वॉज द फर्स्ट टू क्रिएट वर्क्स कमेटी। एट प्रेजेंट देयर आर 620 वर्क्स कमेटी इन ऑपरेशन। इसको गूगल कर लेना ये अगर चेंज हो गई हो तो, ठीक है। जॉइंट नाउ नेक्स्ट है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल का फोकस कहाँ रहता है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, मतलब इसको डिफाइन, इसकी जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल को जो इंपॉर्टेंस कहाँ डिफाइन की गई है वो की गई है, इसको डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में। ठीक है, इसे नोट कर लेना कि जॉइंट जेएमसी कहाँ डिफाइन है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में। इसमें भी वर्कर एम्प्लॉयर इक्वल नंबर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और ये रिकमेंड करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड हाउ टू एफिशिएंटली सॉल्व द एनी प्रॉब्लम, and where it should exist where 500 or more workers are employed, and where there is a strong trade union, and where the labor management relation are sound। जहाँ भी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन अच्छे हैं, 500 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, और वहाँ एक मजबूत ट्रेड यूनियन है। और जेएमसी के बारे में लिखा गया है, इट टेक्स डिसीजन अनएनिमसली एंड शेयर्ड इम्प्लीमेंट देम विदाउट एनी डिले। ये सब मिलके एक डिसीजन लेते हैं और बिना किसी डिले के उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और इश्यूज़ जो डील करते हैं ये करते हैं रिलेटेड द सर्विस कंडीशन द गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस की कंडीशन क्या क्या है, एंड दिस कवर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द क्लास 3 एंड क्लास 4 एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड देयर सबॉर्डिनेट्स। को पार्टनरशिप आपको पता है कि शेयर दे दिए जाते हैं वर्कर को, उनको भी लगता है कि वो एक कंपनी का पार्ट है और उनका भी मैनेजमेंट में उनकी भी आवाज़ सुनी जाएगी। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ टू पार्टिसिपेट वर्कर इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन। एंड कुछ सजेशन स्कीम होती है, वर्कर आर एनकरेज टू गिव सजेशन स्कीम में वर्कर के सजेशन लिए जाते हैं, और अगर कोई सजेशन अच्छा है तो उसको सीरियसली कंसीडर किया जाता है। तो इन 4 वेज से हम क्या करते हैं, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। ना द नेक्स्ट इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा वर्कर का, एक आएगा रिप्रेजेंटेटिव आपका मैनेजमेंट का, दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम रखेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। दैट इज़ द कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेना, आपको नोट्स इसके बाद में मिलेंगे पीपीटीज़ के थ्रू। ठीक है, और या फिर मैं अपने फेसबुक पेज पे भी इसके टाइम टू टाइम डालता रहूँगा, इसके कुछ नोट्स या क्वेश्चंस में ये डिस्कस कर लिया जाएगा। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया आपका। नाउ स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि गवर्न करते हैं कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्कर की एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को। इसमें उनकी ड्यूटी, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी रहेंगी बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, जो कि ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने से क्या होगा, एक इंडस्ट्री में पीस एंड हारमनी बनी रहेगी। तो द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ऑफ 1946 प्रोवाइड द फ्रेमिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर इन ऑल द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एम्प्लॉय 100 और मोर वर्कर। तो मैंने आपको एक्ट बताया, किस एक्ट में इसके स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया गया है? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, नोट कर लीजिए। ठीक है, जहाँ भी 100 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय किए गए हैं वहाँ इसके स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स की एक बार हाईलाइट्स बता देता हूँ कि इसमें रूल्स किस किस से रिलेटेड होते हैं। एक आवर्स ऑफ वर्क से, हॉलीडेज से, वेजेस रेट से, शिफ्ट, अटेंडेंस, लीव्स, स्टॉपेज। ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, और इसको वायलेट करते हैं तो पेनल्टी इम्पोज की जाती है। ओके,
नाउ द ये कोड ऑफ डिसिप्लिन छूट गया है। कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है? ये कोड ऑफ डिसिप्लिन लेज डाउन दैट बोथ द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉय शुड रिकॉग्नाइज देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपने दोनों के राइट होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो एक दूसरे के से मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छे से फॉलो करते रहें। ठीक है, कि एम्प्लॉय के राइट्स क्या है और एम्प्लॉयर्स के राइट्स क्या है, ये ले डाउन करते हैं कोड ऑफ डिसिप्लिन में। 1 सेकेंड, सॉरी एक्चुअली तबीयत ख़राब है तो इस चक्कर में लेना पड़ता है पॉज। अब इन कोड का एम क्या होता है? इन कोड का एम होता है प्रिवेंटिंग डिस्प्यूट्स बाय प्रोवाइडिंग वॉलेंट्री एंड म्यूचुअल सेटलमेंट डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइड एजेंसीज। ओके, ये लोग मिलकर अपना डिस्प्यूट्स नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व कर लें। ठीक है, नाउ द लास्ट इज ट्राईपेराटाइट बॉडी। एक ट्राईपेराटाइट बॉडी बना दी जाती है जिसमें आपके आते हैं इंडस्ट्रियल लेबर कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग लेबर कॉन्फ्रेंस, और ये आपको सजेस्ट कर ये वर्कर्स और एम्प्लॉय सजेस्ट करते हैं डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के तरीके। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा डीप में आने नहीं पता। आपको यहाँ नोट करना है वो करना है कि प्रिवेंटिव मशीनरी में आपके 5 आते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्कर पार्टिसिपेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड कोड ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर भी ठीक है, इसके बारे में बता दिया है। नाउ द अदर इज़ आपका आ गया सेटलमेंट मशीनरी। सेटलमेंट मशीनरी में कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन, ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक काम करते हैं, वीडियो अभी स्टॉप कर दें, नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा अपने वीडियोस में। एंड अब आपको क्या करना है, जो आपको बताया गया है आपको वो सब मेरे को लिख के भेजना है या कमेंट में कमेंट करना वीडियो के नीचे, अच्छा रहेगा। एक प्लेटफॉर्म बनेगा, लर्निंग प्लेटफॉर्म बनेगा, स्टडी क्रीडा को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग देखते हैं सबके सब पार्टिसिपेट करें इस चीज़ में। और नेक्स्ट टाइम मैं ये सब पढ़ाने वाला हूँ, कंसिलेशन ऑफ आर बोर्ड ऑफ कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, कोड ऑफ इंक्वायरी, तो इसके बारे में पढ़ के रहिएगा। नेक्स्ट वीक इसका लेक्चर दे दूँगा, ख़त्म तो इसी वीक कर देता, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी में काम बिगड़े एंड मेरी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, जय हिंद।